Now today we start with some more problems related to linear inequalities. So students, I start with the question number 15 of 6.1 exercise. Again, see how to solve the problem. That is x by 4 is less than 5 times of 5x minus 2 and minus 3 times of 7x minus 3 and this whole upon 15 by taking LCM. That implies x by 4 is less than, that is 25x minus 10 minus 21x and plus of 9 by 15. Alright, further solving, x by 4 is less than, can be written as 4x minus 1 upon 15, or can be written as 15x cross multiplying, that is 16x and minus of 4, or this implies minus x is less than minus 4. To find x, dividing by minus, the sign of inequality can change, therefore x is greater than 4. This question 15. Now this is for x belongs to R, that implies the result will be 4 to infinity. So this is the solution of question number 15. Now after this 15, I will start the one more question. That is another is the question number 17. Solve. The question is solve. That is 3x minus 2 is less than 2x plus 1 and show that the graph of this solution, and this is question number 20, that is x by 2 greater than equal to 5x minus 2 upon 3 minus of 7 by 2 minus of 7x minus 3 and whole upon 5. The new thing is you have to show the graph of the solution. अब आपको इस solution का ग्राफ भी बनाना है. You have to represent also the solution on the number line. So this is question number 17. That is solve this. I start with question number 17. The question is 3x minus 2, that is 17, is less than 2x plus 1. Therefore x is less than 3. Okay. Now how to represent the solution of this is less than 3. The open bracket, that is 3, because the sign is less, and 2 minus infinity. So this is the solution of this on the number, means this is the real solution of this, that is less than 3. Now how to represent in the number line? So students, you see, you draw a line that is minus infinity to infinity. Here become 0, and what is 3? 3 will be somewhere here, and draw a circle, small circle at place of 3, and this is strictly less than, therefore shade the portion like this and draw a arrow. इसका मतलब क्या है कि एरो का मतलब है इसके सॉल्यूशन लेस देन 3 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, तो मैं इस पोर्शन को शेड कर रहा हूँ. ये वाला 3 जो है ये स्पेशल मैंने बता दिया, दिस इज द पॉइंट 3 एंड the solution of this is less than 3, so therefore less than 3, this is the way to draw the number line graph of this. Okay. Now in question number 20, I will start the question number 20, how to solve and draw it on the number line. That is, the procedure is same, greater equal to, that is by multiplying 25x minus 10 and minus of 21x and plus of 9 and this whole upon 50. Now cross multiplying 15x is greater than equal to, or I am just solving it, that is 4x
minus 1 upon 15. Then cross multiplying 15x is greater than equal to 8x minus of 2. That implies 7x is greater than equal to minus 2 or x is greater than equal to minus 2 by 7. So this is the solution of this. How to represent on the number line, that is minus infinity to infinity. Okay, here is let this is 0. Now here is 0. Now 2.7 will be somewhere here, तो मैंने 2.7 यहाँ पर लिख दिया, दैट इज लेस देन 0. ग्रेटर देन इक्वल टू इसका शेड बनाना है तो ग्रेटर देन इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा और इस साइड पे एरो लगा देना है. ये शो कर रहा है इसका सॉल्यूशन यहाँ से ग्रेटर चल रहा है और ये पुट एरो लाइक दिस, एरो शोज, ये एरो बता रहा है कि सॉल्यूशन आगे तक सारे सॉल्यूशंस हैं कहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी. लेकिन इक्वलिटी का साइन है, देयरफॉर आई आल्सो शेड दिस सर्कल. मैं इस सर्कल को जो 2.7 को रिप्रेजेंट करता है उसे भी शेड कर दूंगा. तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन द सॉल्यूशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. नाउ आफ्टर दिस I will start the another problem. You read the question in your NCERT book and try to solve it. In the question number 21, this is the marks obtained by the students, and what is the marks obtained by Ravi? So let X be the marks obtained by Ravi in third test. थर्ड टेस्ट में उसने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो कितने ले लिए हमने, थर्ड टेस्ट में x मान ली. लेट x be the marks obtained by the students and by according to the question you have to write the average of this divided by 3 and add list how much marks he get. That is you have to solve it. You can write it as that is 145x plus x upon 3, or you can write it as greater than equal to 180. Therefore x is greater than equal to 180 minus of 145. That implies x is greater than and equal to 35. So these are the marks obtained by Ravi. उसको कम से कम फर्स्ट क्लास बनाने के लिए कम से कम 35 मार्क्स उस थर्ड टेस्ट में लेने पड़ेंगे, so that he can make at least 60% of the marks. Now on the same way I am again telling you, you read the question properly, then try to solve it. Question number 23, this is I am taking the case of odd. So let two odd positive consecutive integers, let the odd positive, I am taking the case of odd, this is both for same even or odd. So let the two consecutive odd positive integers are x and x plus 2. Then according to the question, that is when x is less than 10, both are less than 10, ये भी less than 10 है और ये भी less than 10 है, दोनों less than 10 है. That implies x is less than 10 और here x is less than 8. या तो x 10 से छोटा है या तो 8 से छोटा है according to the statement. And next is their sum. The sum of the two numbers is greater than 11. तो बोलता है उनका sum greater than 11 है, तो find the odd digits integers. So therefore this can be 2x is greater than 9. What is x? That means x is greater than 9 by 2. अब x की वैल्यू 9 by 2 से ग्रेटर है तो इंटीजर that is greater than 9 point by 2 means 4 point something. 4 point something से पहला जो इंटीजर होगा 5 होगा तो दूसरा कौन आ जाएगा, that is 7. और अगर दूसरा ऑड इंटीजर यहाँ 7 आता है तो एक के दूसरा क्या हो जाएगा 9 हो गया. तो therefore this is the way to find out the odd integer. whether अगर ये ऑड है तब भी आपने इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये ले ले हैं, अगर इवन है तब भी यही याद कर लेंगे. जैसे अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो 3 बन जाएगा, 3 लेता हूँ तो 5 बन जाएगा, 5 लेता हूँ तो 7 बन जाएगा. इस तरह इवन में 2 है तो 4 बन जाएगा, 4 है तो 6 बन जाएगा. तो देयरफॉर वी सपोज द
two odd positive consecutive integers are x and x plus 2, and according to the statement you read the statement properly and try to solve it. Both of them are less than 10. अगर ये less than 10 है तो ये भी less than 10 है, ये कंडीशन में दे रखा है तो x is less than 10, यहाँ से पता लगता है x is less than 8 होता है. तो therefore their sum, उनका सम जो है इज ग्रेटर देन 11 गिवन है, तो मैंने इसको सॉल्व करा. x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 से ग्रेटर, दैट मींस 9/2 मींस 4.5 के बाद जो इंटीजर्स आएंगे वो 5, 6, 7 एंड 8 एंड सो ऑन 9 होंगे 10, 11 तक. इसीलिए लेकिन साथ में क्या बोला है यहाँ पर, अगर पहला ऑड 5 है तो दूसरा 7 होगा, 7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 है, और दे आर बोथ लेस देन 10. x is less than 10, तो 10 से नीचे वाले इंटीजर लेने हैं, and their sum is greater than 11. You see that 5 plus 7 greater than 11 and 7 plus 9 also greater than 7. So this way you can solve the problem 23. Now after this we have in question number 25. Again read the question. According to question, let the shortest side be x. जो शॉर्टेस्ट साइड है मैंने उस ट्रायंगल की साइड रखी है, एंड द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज x. उस शॉर्टेस्ट साइड को x मान लिया, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वन साइड इज 3x and another is 3x minus 2. Then he says again you read the question. By according to question this is greater than equal to 61, और ये वैल्यू उसने 61 से ग्रेटर देन इक्वल टू रखा है, तो देयरफॉर दिस बिकम्स 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9. देयरफॉर x, द साइड्स आर, एंड ही सेज फाइंड द साइड्स. तो व्हाट आर द साइड्स? इन दिस वे द साइड्स आर ग्रेटर देन 9, दैट इज this is greater than equal to 9. The sides are 27. One is x is 9, another is 27, and another is 25. So these are the sides. So these are very basic problems. You can solve it very easily. Now after that I will start the important topic of this, the exercise 6.2. In the 6.2, how to solve graphically the system of equations. The 6.2 exercise, the question number first is solve graphically, and the question is x plus y is less than 5. This is question number first I am taking, and the question number third of your NCERT book, that is 3x plus 4y is less than equal to 12. I am taking both the cases. One is of strictly less than and another is of less than equal to. So therefore friends, see, इस पहले क्वेश्चन में आपको शो करना है बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस. आपने छोटी क्लासों में ग्राफ बनाए हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी होता है, लेकिन यहाँ भी हम ऐसे चलेंगे और हमें पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती. पहले सबसे पहले स्टेप में मैं इसकी इक्वलिटी सेट कर दूंगा, लेट दिस इज इक्वल टू 5. पहले बाउंड्री बनानी है, और बाउंड्री बनाने के बाद इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने टेबल बनाना है और टेबल में दो वैल्यूज देनी, एक x और y. एक x एक्सिस पे पॉइंट लेना है और एक y पे. अगर x means if x is 0, तो what is y? That is 5. और if y is 0, then x is again 5. तो we have been 2 points. One is 0, 5. आपको ज़्यादा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, जैसे 10th क्लास में 3, 4 पॉइंट लिया करते थे. You draw the axis system properly. y dash आप नोट कर लें. You also draw the arrows. arrow का मतलब है line is increasing और this way. तो जरूर बनाने हैं. उसके बाद origin को आपने सेट कर देना है. अब origin के बाद पहला पॉइंट है x0 y5. जब x0 है तो y5 है, मैं पॉइंट यहाँ लूंगा x0 एंड y5. यू आपको एक प्रॉपर वे में ग्राफ यूज करना है. अगर ग्राफ यूज करेंगे तो ये ग्राफ बहुत बढ़िया बनेंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ बिकॉज देयर मींस व्हाइल ड्राइंग द जनरल ग्राफ वी कैन ड्रॉ दिस वे, बट इन ग्राफ देयर प्रॉपरली मेजरमेंट
इसके बीच में मेजरमेंट बढ़िया होता है, यूनिट पूरा डिफाइन होता है, तो देयरफॉर यू ऑलवेज यूज द ग्राफ पेपर्स। और जब आप ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ग्राफ बना के भेज सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट 0 और 5 है। दूसरा जो है सेकंड इज व्हेन x इज 5 y 0, x 5 है तो y 0 है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी लाइन कैसी ड्रॉ करनी है, अभी तो ये गलत है, मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां नोट करना दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन आता है तो दिस लाइन विल बी डॉटेड, डॉटेड लाइन बनाएंगे अगर स्ट्रिक्टली लेस देन। ओके, दिस इज द डॉटेड लाइन। आप लोगों ने पहले डॉटेड बनानी है, मैंने तो मिटा दी, आपको डॉटेड लाइन बनानी है। अगर लेस देन है तो ऑलवेज बी डॉटेड, कीप इन माइंड। और अगर इक्वलिटी का साइन है तो विदाउट डॉटेड मींस पूरी लाइन बनानी है। तो कैसे देखें, दिस इज द डॉटेड लाइन बिकॉज दिस शो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन। अब मुझे देखना इसका सॉल्यूशन कहां जाता है, तो इसको बोलते हैं दैट इज ओरिजिन टेस्ट। मैं एट 0 0 पे टेस्ट करूंगा, इसका नाम होता है ओरिजिन टेस्ट। ये ओरिजिन यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर ये पॉइंट 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। मैं इस पॉइंट पे टेस्ट करूंगा बिकॉज दिस इज ऑलवेज फिक्स। तो ये इक्वेशन आपके पास है। ओरिजिन टेस्ट कैसे करेंगे, x को 0 करूंगा, y को 0 लिखूंगा और एक चेक करूंगा 0 + 0 0 इज 0 लेस देन 5। ओके, होती है 0 लेस देन 5 है, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने इस तरह से ये शेड बना देने हैं, ये एरो लगा देने हैं ऐसे, और ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसे एरो का मतलब है ये इस तरह से पूरे जो पोर्शन है, इस लाइन से नीचे वाला जो पोर्शन है, इस सारे इसके सॉल्यूशन सेट हैं। यू कैन पिक अप एनी पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज -5 एंड -5। x भी -5 है, y भी -5 है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। जो x -5 रखता हूँ तो दिस बिकम्स -5 -10 is always less than 5, so therefore our state is okay, so therefore these are the solution. So this is the way to draw the graph of a single line. सिंगल लाइन का शेड ऐसे बनाना है, आपको तो डबल और ट्रिपल लाइन पढ़नी है। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ सिंगल लाइन व्हेन दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन। इज इट क्लियर? आई एम अगेन टेलिंग यू, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को लिखना है, इक्वलिटी का साइन लगा के यहाँ पर x और y की वैल्यू बनानी है। x और y, और स्प्लिट से नोट करें ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, दिस ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, इधर उधर बेंड नहीं होगा। तो देयरफॉर पिक अप वन पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड अनदर ऑन y एक्सिस। तो मैंने x एक्सिस पे पॉइंट ले लिया, x एक्सिस पे y 0 होता है, पॉइंट बन गया, y एक्सिस पे x 0 होता है, दूसरा पॉइंट बन गया। इन दोनों को मैंने ट्रेस कर लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर लेस देन है तो स्ट्रिक्टली लेस देन, और अगर इक्वल है तो लाइन बना देनी है। तो देयरफॉर दिस इज द शेड ऑफ दिस। नाउ आई एम drawing the graph of this question number third. In third, the first step is 3x plus 4y is equal to 12. अब इसका टेबल बना लें। इस टेबल में क्या है, एक x वैल्यू है, दूसरी y है। x में when x is 0, तो what is y? That is 3. y 0, x is 4. तो these are the 2 points 0, 3 and अब मुझे इसका x सिस्टम बनाना है। आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर वे में ये एरो लगाने हैं, एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस डैश वाई वाई डैश लिखना है। ये ग्राफ बड़े काम का है, +2 में भी इसी तरह से इसके ग्राफ बनाए जाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी बेसिक यही है। तो कैसे, x 0 y 3, जब x 0 है तो y 3 है, मैं पॉइंट यहाँ लेता हूँ, x 0 y 3, मैं आइडिया से पॉइंट ले रहा हूँ, आप प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज करें। व्हेन x is 4 y is this, तो x 4 है एंड y is 0। मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, लेकिन अब लाइन जो है वो डॉटेड नहीं होगी, क्यों? साइन ऑफ इक्वलिटी इज देयर। इसका मतलब इक्वल वाले पॉइंट इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर आ सकते हैं। अब मुझे ओरिजिन टेस्ट करना है, तो ओरिजिन इज दिस, हियर इज 0 0, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन टेस्ट पे क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन टेस्ट। ये भी नोट करें। हम ओरिजिन टेस्ट क्यों नोट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉइंट यहाँ पर 0 0 होगा, बाकी वी डोंट बॉदर अबाउट अदर पॉइंट्स। तो कैसे, ओरिजिन टेस्ट पे मैं x को 0 रखूंगा, y को 0 रखूंगा, इज इट लेस देन इक्वल टू दिस,
therefore 0 is less than equal to 12. 0 जो है 12 से less नहीं होती, 0 never less than 12, therefore this is not true. इसका मतलब 0 never be less than 0 never be less than 0 is 0 is less than not never be equal to this. इक्वल नहीं होती, लेकिन क्या है हमेशा दिस ऑलवेज भी लेस देन, दो साइन है, 0 लेस देन 12 0 के नेवर इक्वल, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसको लेस देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो 0 लेस देन 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, दिस इज लेस देन 12, तो मैं इसका शेड बना दूंगा, कहाँ को जाएगा, इस साइड को जाना है, कहाँ ओरिजिन वाली साइड को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वालिटी। और अगर मैं इसी तरह इसमें भी पॉइंट ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दैट इज -15 एंड माइनस ऑफ 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, दिस ऑलवेज बी लेस देन 12, देयरफॉर आवर ग्राफ इज राइट। ओके, तो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ सिंगल लाइन, राइट।